Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of November 2020, Thursday. Inspiration of the day is today a reader, tomorrow a leader. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. US cliffhanger Biden takes a slender lead. As we all know, there is a US presidential election going on in United States of America. A number of controversies and issues have been generated during the counting process of votes. Why? With a handful of close fought states have decided that they will declare their outcome or results in upcoming hours or days at one end. On the other end, the Donald Trump falsely claimed victory and made some unsubstantiated allegation of electoral fraud. अपनी विक्ट्री क्लेम करने के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे भी चार्जेस लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं इलेक्टोरल बोर्ड पर कि वो वहाँ पर करप्शन हुआ है और उस करप्शन के तहत उनको जानबूझ के उनको हराया गया है बाय यूजिंग सर्टेन अनएथिकल और इलीगल मीन्स. So this fight was basically between President Donald Trump and his Democratic rival Joe Biden, and both still have a path to reach the needed 270 electoral college point. तो basically ऐसी पार्टी जो 270 का आंकड़ा क्रॉस कर जाती है that will be considered as a winner to the White House. Although इस COVID-19 की ड्यूरेशन में election held karana was quite challenging, and still the states keep counting the mail-in ballots that surge amid COVID-19 pandemic. इस pandemic के duration में भी बहुत अच्छी voting हुई and states are still counting their mail-in ballots in order to reach out an outcome. अगर हम ओपिनियन पोल्स की बात करें तो ओपिनियन पोल्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डिफरेंट ओपिनियन पोल्स हुए थे उनमें एक स्ट्रॉन्ग लीड देखने को मिल रही थी नेशन वाइड डोनाल्ड ट्रंप को. बट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो जिसे हम इंडिया में बोलते हैं झुकाव आ रहा है, जो काउंटिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत क्लोज फाइट चल रही है बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेटिक. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली डोनाल्ड ट्रंप इज alleging the electoral board and saying that he will go for Supreme Court against all these electoral fraud. हालांकि जिस तरह से अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, काउंटिंग चल रही है, उसको देखते हुए दोनों ही कैंडिडेट्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से पावर में आएंगे या दोबारा से अथॉरिटी में आएंगे. स्टिल जॉय बिडेन कैंप हैज़ अ hope to win the White House. And this is certain statistics that you don't need to mug up, you just go through it once. अब देख लेते हैं article number 2 given on page number 6. Services activity grows for first time in 8 months. The service sector activity expanded in the month of October as per the data released by IHS Market, and we all know IHS Market published data on Purchasing Manager Index for manufacturing sector and for service sector. For manufacturing sector, yesterday we have discussed the news that in the month of October, the Purchasing Manager Index for manufacturing sector has seen a expansion that is biggest since last 10 years or 1 decades. Today, the data is about the Purchasing Manager Index for Service Sector. तो जो भी इंडेक्स ये IHS मार्केट पब्लिश करता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं 100 पॉइंट की इंडेक्स होती है, जिसमें 50 से नीचे का अगर नंबर आता है तो दैट इंडिकेट्स अ कॉन्ट्रैक्शन इनटू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऑफ सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अगर 50 से ऊपर के पॉइंट्स आते हैं तो दैट इंडिकेट्स अ expansion. So we can easily say a PMI index of more than 50 represents the expansion, while a figure below 50 indicates a decline into the activity. Activity means purchasing decision of a manager into services as well as manufacturing sector. तो जो अक्टूबर मंथ का डेटा आया है
उस डेटा के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर एक्सपेंड हुआ है 49.8% से लेकर के 51.1% इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हालांकि अगर हम देखें, if we compare the manufacturing PMI with the service sector PMI, we can easily decipher that the contraction into the manufacturing PMI was more in comparison to the service sector because of the COVID-19. Or in a very simple statement, we can say the contraction into manufacturing PMI was more or worse than the PMI into service sector. Although there was a contraction in service sector PMI as well, but that was very low in comparison to the manufacturing sector in terms of extent. So for the month of October, service PMI has also shown the expansion with 54.1%. And why service sector PMI is so important for India? Student, if you know or you have read so many times into the newspaper that the service sector excluding construction contributes nearly 60% to the India's GDP, that is gross value added in the economy. तो जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 60% से ज़्यादा है। और कई बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री रही है इंडियन इकोनॉमी की, वो अदर इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में, मोर स्पेसिफिकली चाइनीज़ इकोनॉमी के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट रही है। कोई भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ ट्राजेक्ट्री से चलती है तो पहले वो प्राइमरी सेक्टर उसका स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग सेक्टर। लेटर ऑन सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज़ primarily called as or more specifically called as manufacturing sector, वो sector strong होता है। then economy move into the tertiary sector, that is also called as service sector। इंडिया के केस में क्या हुआ है? इंडिया के केस में we just jump from primary sector to the tertiary sector, we have missed that linchpin of secondary sector or the manufacturing sector। और इसीलिए उसको लेकर के जो करंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप किया जा सके, जिससे कि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो हैवी मशीनरी हो या अदर मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो, उनकी डिपेंडेंसी जो हमारे फॉरेन मार्केट्स हैं उन पर रिड्यूस हो जाए और इंडिया का जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से लेकर के एरोस्पेस तक, वो सब इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आए। तो उसके लिए बहुत सारी PLI स्कीम, टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, tax holidays, structural reforms has already been taken by government under Atmanirbhar Bharat, or even when 2014 this particular government had taken the power, the focus of the emphasis was on manufacturing sector revival by Make in India and Skill India programs. However, the success of these programs are still question mark, but current government is keenly or strongly focusing on manufacturing sector in order to increase the contribution of manufacturing sector into Indian economy, as well as to reduce the dependency of Indian firms or Indian manufacturing sector on foreign economies or foreign firms. On the other hand, to make Indian manufacturer product more competitive into the international market। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएंगे कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और सेकेंडरी का कितना है। टर्शरी का मैंने बता दिया, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 60%। तो अगर हमारा इकोनॉमी 100 रुपीज़ की है तो 60% जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 60 रुपीज़ जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे सर्विस सेक्टर से। तो अब आप मुझे बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग का और प्राइमरी का कितना कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी में। तो अगर इंडिया के केस में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इन सर्विसेज इज इंक्रीजिंग, that have a more or strong impact in comparison to the PMI of manufacturing, and it is indicating the quite sober recovery path for Indian economy, and IHS market is expecting the revival to gain speed into the October and December quarter as per the current PMI index of services as well as
manufacturing sector. A sharp rise in the factory production was accompanied by the return to the growth of service activity. That is quite obvious. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर पर भी पड़ेगा और उसके साथ सर्विसेज भी ग्रो करेंगी. और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया भी था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10 साल में, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है अक्टूबर के मंथ में. डेफिनेटली अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो हमारी सर्विस एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी. इकोनॉमी इज़ इंटरलिंक्ड. हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल अलग है, सेकेंडरी बिल्कुल अलग है, टर्शरी बिल्कुल अलग है. नो, it is just for the easiness of the calculation of the contribution. Otherwise, all three sectors are closely linked with each other. If one sector is impacted, the other will definitely. And this is the composite output index since previous month. तो ये हम देख सकते हैं जो सर्विस PMI है उसका कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स है और किस तरीके से ये फॉल करता हुआ फिर रिकवरी पर पहुंच रहा है. दैट वी कैन ईजिली सी. So this yellow line indicates the GDP and the green line indicates the composite output index. और जहाँ जहाँ ये 50 से कम है, जहाँ जहाँ इसका नंबर 50 से कम है, वहाँ वहाँ हम ये कह सकते हैं कि सर्विस एक्टिविटी में कॉन्ट्रीब्यूशन जो कॉन्ट्रैक्शन आया है. और जहाँ इसने 50 का मार्क क्रॉस किया, वी कैन से इट इज़ अ एक्सपेंशन इनटू सर्विस एक्टिविटीज़. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 10. Pre-packaged scheme special rules for MSMEs in amendment to IBC. Ministry of Corporate Affairs MCA ने recently एक कमेटी फॉर्मुलेट करी है, कमेटी बनाई है. उस कमेटी का जो बेसिक पर्पस है इज टू कंसीडर द वेरियस अमेंडमेंट्स इनटू IBC. IBC stands for Insolvency and Bankruptcy Code and that is one of the very appreciated code in Indian economy since last few years. तो अभी के लिए न्यूज़ क्या है? न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक कमेटी सेटअप करी है एंड द mandate of that committee is to see the various amendments to the 4-year-old insolvency and bankruptcy code which is more likely to be introduced into the upcoming winter session of the parliament. Now the question arises, why this committee has been set up when IBC is working very efficiently, very गुड मैनर. तब क्या ज़रूरत पड़ी कि IBC में कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाए? बेसिकली ये जो अमेंडमेंट्स ला रही हैं कमेटी या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो अमेंडमेंट लाना चाह रही, दैट इज़ मोर स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. तो MSMEs को लेकर के कुछ स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा अंडर IBC in order to reduce the delay in admission and disposable of cases. तो इनिशियली जब IBC आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो बहुत एफिशिएंटली बहुत सारे केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया था जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे. बट रिसेंटली कोविड-19 की वजह से एंड बिकॉज ऑफ अदर हर्डल्स द डिले इन केसेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो जब बेसिक पर्पस था IBC कोड लाने को वो एक्चुअली हॉल्ट हो रहा था, वो डिस्करेज हो रहा था. IBC लाया ही इसीलिए गया था कि जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है वो कई साल तक चलती रहती है जिसकी वजह से जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है, उनका पैसा बहुत टाइम तक फंसा रहता है, निकल कर बाहर नहीं आता कंपनी से. कंपनी तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुकी होती है लेकिन उसकी जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रही होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही होती है, वो भी बहुत लंबी चलती है. तो जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एंड इट डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. कि भाई इनके यहाँ तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है. तो अगर एक बार इन्वेस्टर का पैसा फंस गया इंडियन इकोनॉमी में तो उसको निकलना बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता था. तो इसी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी वजह से जो इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी. बट कुछ रीसेंट टाइम से देखा जा रहा है कि जो मेन पर्पस था IBC को लाने का कि जो केसेस हैं उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए जिससे कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनका जो मनी स्टक है, जो इन्वेस्टमेंट स्टक है पर्टिकुलर इंसॉल्वेंट कंपनी में, वो जल्दी रिलीज़ किया जाए. दैट कैन बी यूज फॉर अदर इकोनॉमिक पर्पस. और जिसके लिए मिनिस्ट्री ने और कमेटी ने
सजेशन इनवाइट भी किए थे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से, जिसको हम IBBI भी बोलते हैं, उससे बहुत सारे सजेशंस इनवाइट किए थे. नाउ द कमिटी इज इन अंडर द प्रोसेस ऑफ evaluating all those suggestions received from industry representative associations and IBBI. And as per one of the official involved into this process, that amendments are always need based and matter of urgent nature will have to be dealt with. And this is the case count in case of insolvency and bankruptcy code of India. And we can see that most of the cases are ending up in liquidation. मतलब most of the जो insolvency के जो resolution के cases थे उनमें companies का liquidation ही हुआ. अगर हम देखें approximately 3,900 करोड़ जो केस है वो एडमिट हुए थे IBC में as of June 30, 2020. कितने क्लोज हुए? 380 अभी तक क्लोज हो पाए हैं ऑन अपील, ऑन रिव्यू. क्लोज बाय रेजोल्यूशन 250. विड्रॉन कितने केस हुए? अप्रॉक्सीमेटली 218 केसेस विड्रॉन भी हो चुके हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो जो लिक्विडेट हुई ही कंपनी जो सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 केसेस लिक्विडेट हुए. इट मीन्स उस केसेस में कंपनीज को बेच दिया गया है और असेट्स बेच करके जो कंपनीज के क्रेडिटर्स थे उनको उनका पैसा वापस किया गया है. तो मैक्सिमम केसेस में लिक्विडेशन देखने को मिला है इन केस ऑफ IBC. अभी अभी अप्रॉक्सीमेटली 2100 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं. अगर हम देखें स्पीडी प्रोसेस की कितना टाइम लिया IBC ने केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 1094 केसेस हैज बीन रिजॉल्व ओवर 270 डेज, जो कि मैक्सिमम लिमिट थी केसेस के रिजोल्यूशन की. ओवर 180 डेज के टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली 500 केस रिजॉल्व हुए. ओवर 90 डेज 400 एंड लेस देन 90 डेज 73 केसेस रिजॉल्व हुए. तो अगर हम देखें इस क्वांटम को, इन नंबर्स को, इन स्टैटिस्टिक्स को, वी कैन ईजिली डेसिफर कि कहीं ना कहीं जो IBC का पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं केसेस जो आए रिजोल्यूशन के, इंसॉल्वेंसी के जो केसेस आए वो बहुत प्रॉपरली सेटल नहीं हुए. ऑल्दो इवन दिस नंबर मे नॉट बी वेरी इनकरेजिंग बट इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिस्करेजिंग, क्योंकि अगर हम IBC के पहले का डेटा देखें तो वो बहुत स्कैटर्ड डेटा है. कुछ कुछ केसेस तो बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे और ना ही उनका रिजोल्यूशन हो रहा था, ना ही वो लिक्विडेशन में जा रहे थे और ना ही वो केस क्लोज हो रहा था. दे वर स्टिल ongoing into the resolution process. इसी के लिए IBC लाया गया था. हालांकि IBC में कुछ फ्लॉज हैं एज पर MSMEs कंसर्न. उन पर्टिकुलर फ्लॉज को रिवाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कमिटी सेटअप करी, एंड मोस्ट लाइकली दिस पर्टिकुलर committee will set up its suggestion into the winter session, and in winter session we are going to see major amendments into the IBC or Insolvency and Bankruptcy Code of India. अब देख लेते हैं some other news clips. ED files charge sheet against Kochhars. So finally Enforcement Directorate has filed a prosecution complaint also known as charge sheet. तो जो ICICI बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, जिसमें वहाँ की जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रा कोचर थी और उनके हस्बैंड भी इन्वॉल्व थे, एंड अपार्ट फ्रॉम देम 9 अदर officials or connections were involved into the money laundering case of private lender, that is ICICI and Videocon Group. तो उसको लेकर के फाइनली ED ने चार्ज शीट फाइल कर दी है, and in that charge sheet or the prosecution complaint, ED named Videocon Group and chairman Venu Gopal Doot, companies of Doot and Deepak Kochhar, apart from the farmer's CEO and managing director Chandra Kochhar. तो अब इनके अगेंस्ट केस चलेगा, हियरिंग्स होंगी और फ्यूचर में देखने को मिलता है कि क्या किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मनी सिफन ऑफ किए हैं इन सब ने मिल करके एक बहुत ही रिनाउंड प्राइवेट बैंक में, उसको लेकर के क्या इनके अगेंस्ट एक्शन होता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Starbucks guilty of overcharging customers, NAA.
So India's profiteering watchdog, that is NAA, National Anti-Profiteering Authority, has found Tata Starbucks guilty of not passing the benefit of reduced GST tax rate to the consumer. And because of that non shifting of profit, Tata Starbucks has earned approximately 1.04 crore. तो इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हमें जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन पर जाना पड़ेगा। जब जीएसटी 2017 में इंडिया में जो नया रिजिम आया था इनडायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर के, तो उस समय एक एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी सेटअप करी गई थी जिसको एनएए बोला गया था। दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी वाज सेटअप विद अ सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज मीन्स कि ये कहा गया था कि 2-3 साल बाद जब जीएसटी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा तब इस अथॉरिटी को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, या अथॉरिटी एक्सीज टू एग्जिस्ट, खत्म कर दी जाएगी, इसके एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये इसका क्या फंक्शन था नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का? बेसिकली जीएसटी में एक क्लॉज है एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज। वो क्लॉज ये कहता है कि ऐसे सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जहाँ पर जीएसटी टैक्स रिडक्शन हुआ है, पहले टैक्स ज़्यादा था, जीएसटी की वजह से वहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स रिडक्शन हुआ है, तो उन सारे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में जो भी रिडक्शन आया है वो रिडक्शन इवेंचुअल कस्टमर तक, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचाना है कंपनीज को और द रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा कोई कंपनी नहीं करेगी, ऐसा कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा कि जीएसटी रेट कम हुए जिसकी वजह से कमोडिटी और सर्विसेज के प्राइस कम हुए और उस प्राइस कम होने का बेनिफिट कंपनी उठा ले रादर देन पासिंग इट टू द इवेंचुअल कस्टमर। कंपनी उतना ही प्राइस मेंटेन करे और जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अपने को प्रॉफिट के फॉर्म में रख ले। तो इसीलिए इसको बोला गया एंटी प्रॉफिटरिंग, कि जीएसटी रेट्स के कम होने से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिट इवेंचुअल कस्टमर तक पास ऑन होना चाहिए। और ये देखने का काम कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये ना करे कि वो इस प्रॉफिट को कस्टमर तक पास ऑन ना करे, उसके लिए ये नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी सेट करी गई थी। सो एनी रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन एन any supply of goods and services or benefit of input tax credit should be passed on to the recipient by the way of reduction into the prices of particular goods commodities। तो इसको देखने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी एनएए सेटअप करी गई थी। इट इज जस्ट लाइक अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म अंडर जीएसटी लॉ इन ऑर्डर टू चेक द अनफेयर प्रॉफिटरिंग एक्टिविटीज बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी लॉ। तो जो 22वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की गुवाहाटी में, उसमें एनएए को सेटअप किया गया था। And what is the legal mandate of NAA? It is basically to examine and check such profiteering activities and recommend punitive actions including cancellation of registration. It means इसके पास biting tooth भी है, NAA punitive actions भी इम्पोज कर सकती है, फाइन भी इम्पोज कर सकती है रजिस्टर्ड कंपनीज पर और retailers or distributors पर if they are found involved into any sort of any sort of profiteering activities and not passing the benefits of input tax credit or reduce taxes reduction to the eventual customers। तो बेसिकली अगर हम बात करें कितने मेंबर होते हैं एनए में, तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 टेक्निकल मेंबर होते हैं। And apart from these members, there are standing committees, screening committee in every state, as well as the Director General of Anti-Profiteering in the Central Board of Indirect Taxes and Customs. They all work together in order to find out any sort of profiteering activities owing to the reduction into the GST rates, और ये हम ये कह सकते हैं they all will work together on anti-profiteering front। तो ऐसा कहा गया था कि आगे आने वाले टाइम में जब 2-3-4-5 सालों में जब प्रॉपरली जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, आफ्टर दैट दिस नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी विल बी डिसमेंटल। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो कंपनीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट सब passing or they actually not shifting that profit towards the eventual customer, जिसके लिए एनए का जो टेन्योर है वो थोड़ा सा अभी और इंक्रीज कर दिया गया है। और अभी जो रीसेंट केस आया वहाँ पर एक रेनाउंड कंपनी जो स्टारबक बेसिकली वेंचर है टाटा का
और एक फॉरेन कंपनी का 50-50% का वेंचर है। उसमें एनएए ने प्रॉफिटरिंग को लेकर के माल प्रैक्टिसेस को देखा और ये पाया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि स्टारबक ने जीएसटी रिडक्शन, जो टैक्स रेट में जो रिडक्शन हुआ था रेस्टोरेंट के 18% से 5% तक ला दिया गया था, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ स्टारबक को, वो प्रॉफिट उसने अपने इवेंचुअल कस्टमर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो प्री जीएसटी जो रेजीम है, उस रेजीम में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 18% तक का सर्विस टैक्स लगता था। जब जीएसटी आया उसके बाद वो 18% से रिड्यूस होकर के 5% तक आ गया। तो एनएए का कहना है कि जो रिडक्शन हुआ प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी टैक्स रेट्स में, उस रिडक्शन को स्टारबक ने इवेंचुअल कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया, प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज नहीं किया, इवन कई कई केसेस में तो प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 1.04 करोड़ का फायदा हुआ स्टारबक को। तो अब नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने क्या पुनिटिव एक्शन, क्या फाइन इम्पोज किया है। एनएए ने कहा है कि पहले तो अप्रॉक्सीमेटली 1.04 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया बिकॉज ऑफ द जीएसटी टैक्स रेट रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड स्टारबक ने इतने टाइम ड्यूरेशन तक एस्केप किया, पेनल्टी को हाइड किया एनएए से अपनी सारी डिटेल्स। तो अब जितना भी प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है वो प्रॉफिट दैट इज 1.04 करोड़ शुड बी डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अलावा इस पे 18% इंटरेस्ट रेट भी देना है एज अ पेनल्टी। तो हम ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए एनएए ने फाइन इम्पोज किया है स्टारबक पे 18% का, जो भी प्रॉफिट उसने अर्न किया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिटरिंग क्लॉज, उसका अमाउंट और उसमें प्लस 18%। तो अब कंज्यूमर तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, अगर कंज्यूमर आइडेंटिफाई हो जाता तो डायरेक्टली कंज्यूमर को वो प्रॉफिट जो था वो रिडक्शन इनटू द प्राइस या वो जो प्रॉफिट अर्न किया है स्टारबक ने वो ट्रांसफ़र किया था। बट इस केस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई प्रॉफिटरिंग अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड in the consumer welfare funds of center and state। फिलहाल के लिए ये पुनिटिव एक्शन लिया है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने अगेंस्ट स्टारबक्स। अब देख लेते हैं सम अदर क्लिप। मे रीच प्री कोविड ग्रोथ लेवल बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 सेज सेंटर। इंडियन इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट बहुत डिफरेंट तरीके से फोरकास्ट, ये ओईसीडी का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, एसबीआई का, इकरा का, केयर का, सबके अलग अलग फोरकास्ट हैं। बट एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, economy has been recovering at a fast pace and would likely to reach the pre-COVID-19 level by the end of current fiscal year, that is fiscal year 21। हालांकि मिनिस्ट्री जो है वो अभी भी जो सेकेंड वेव है कोविड की उसको लेकर के स्केप्टिकल है, और एक उसका अपना ओपिनियन ये है कि अगर सेकेंड वेव कोविड-19 की आती है तो दिस टाइम पीरियड में बी extended and the recovery of economy may be derailed and may be delayed, जिसके लिए मिनिस्ट्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अर्ज किया है इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को, कि अभी भी वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करें, जितने भी नॉर्म्स हैं कोविड-19 के प्रिकॉशन को लेकर के फॉलो करें, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इंडिया में भी सेकेंड वेव कोविड-19 की आए, क्योंकि अदर कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग द सेकेंड और द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। SBI Q2 net profit jumps 52% on higher NII and fall in provisions। तो जस्ट लाइक अदर बैंक्स, हमने अभी कल पढ़ा था कि प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर किया इनटू द Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। SBI net profits has jumped to 52% with higher net interest income। और जो प्रोविजंस हैं बैड लोन के लिए जो बैंक्स प्रोविजंस करते हैं, उन प्रोविजंस में भी रिडक्शन देखा गया है। तो जो एसबीआई का नेट प्रॉफिट रहा है फॉर द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 वो अप्रॉक्सीमेटली 4,574 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले सेम पीरियड के कंपैरिजन में 51.9% ज़्यादा है, और जिसकी वजह से कल
SBI के जो स्टॉक्स हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 1.1% का पॉजिटिव चेंज रजिस्टर किया गया है। हालांकि इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी जो लेंडर्स हैं उन्होंने अभी भी बैड लोन और स्ट्रेस लोन्स का जो रिस्क है उसको मिटिगेट नहीं किया है। बैंक आर स्टिल कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क ऑफ अ राइज इनटू द स्ट्रेस, मोर स्पेसिफिकली लोन गिवन टू द एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर इन अपकमिंग मंथ्स। तो SBI का ये कहना है कि अभी भी जो ऐसा लोन जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर और MSMEs को दिया गया दैट आर एक्चुअली अंडर द रिस्क ऑफ स्ट्रेस असेट्स। ऑल्दो अभी उनके लिए प्रोविजनिंग नहीं हुई, तो ये हमें कह सकते हैं कि प्रोविजनिंग नहीं हुई, प्रॉबेबली इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज दिख रहा है। फ्यूचर में अगर एग्रीकल्चर और जो MSMEs को लोन दिए हैं SBI ने, जो SBI का एक्सपोजर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरफ, हो सकता है उसमें कुछ NPA देखने को मिले या NPA का अमाउंट बढ़ता हुआ देखने को मिले, ऐसा SBI ने कॉशियस किया है। आप ये कह सकते हैं कि रेड फ्लैग इस पे अभी लगाया है। फिलहाल के लिए दीज गुड रिजल्ट्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, प्री पैकेज्ड स्कीम स्पेशल रूल्स फॉर MSMEs इन अमेंडमेंट्स टू IBC। Vocabulary of the day is stinging. Stinging means चुभता, मर्मभेदी, डसने वाला। Mordant, sharp tongue, peppery, all are the synonyms of stinging. जो stinging verdict हमने US प्रेसिडेंट इलेक्शन के केस में इस टर्म को यूज किया था। All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.